شہنامے میں خوش آمدید، تفصیلی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ سنبریال کے علاقے کے رہائشی 2 نوجوان عمر اور عادل جاں بحق ہو گئے۔ انسانی اسمگلروں کی گاڑی لیبیا کے قریب حادثے کا شکار ہوئی۔ انسانی اسمگلروں کی گاڑی میں 6 افراد سوار تھے، 2 کا تعلق سنبریال کے علاقے سے ہے۔ دونوں نوجوان عمرے کے ویزے پر گئے تھے، سعودیہ سے لیبیا جا رہے تھے کہ اسمگلر کی گاڑی میں ایکسیڈنٹ کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ گاڑی میں سوار افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ خانیوال کے ڈی ایچ کیو میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر اسد اقبال پاشا کی جانب سے ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کا کامیاب آپریشن کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے ڈپٹی بیورو چیف عامر نصیر سے۔ جی عامر، آگاہ کیجیے گا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال خانیوال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر اسد اقبال پاشا کی جانب سے ریڑھ کی ہڈی کا کامیاب آپریشن کیا گیا۔ تو بات کرتے ہیں ہمیں موجود ہے ڈاکٹر صاحب، ان سے سر بتائے گا، تاریخ میں پہلی مرتبہ خانیوال ڈی ایچ کیو میں آپ نے ریڑھ کی ہڈی کا کامیاب آپریشن کیا ہے، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ آپ کا بہت شکریہ، اور صرف جو ہے نا مبارکباد کا لائق خالی میں نہیں ہوں، آپ سب ہیں، آپ سب اس خانیوال کا حصہ ہیں، اور یہ بلا شبہ ڈی ایچ کیو کی بھی کامیابی ہے کہ ڈی ایچ کیو کے اندر پہلی دفعہ ریڑھ کی ہڈی کا کامیاب آپریشن ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک پیشنٹ آدی والی کوئی سے آیا تھا جو درخت سے گرا تھا، جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو ہم نے اس کا آپریشن کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا اس کی ٹانگ کام نہیں کر رہی تھی، اب ماشاءاللہ اس کی ٹانگ کام کر رہی ہے۔ تو میں اس پہ مبارکباد دیتا ہوں ڈی سی صاحب کو بھی اور ایم ایس صاحبہ کو بھی، جن کی محنت اور جن کی جو ہے نا سرپرستی کی بدولت ہم یہ کام کرنے کو جو ہے نا جس کے قابل ہوئے۔ دوسری بات میں یہاں پہ ایک اور ریکویسٹ کروں گا، ہمارے پاس یہاں پہ آرتھوپیڈکس کی پوری ٹیم ہے، اس کے علاوہ بے ہوشی والوں کی ٹیم ہے، ہمارے خانیوال کی 30 لاکھ آبادی ہے، اس کے تینوں تحصیلوں اور چوتھا بشمول خانیوال میں کسی بھی جگہ ایم آر آئی کی فیسلٹی نہیں ہے۔ تو یہ 30 لاکھ کی آبادی والا جو ہمارا ایک ضلع ہے جو اس ایم آر آئی کی سہولت سے محروم ہے، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر اس کے اوپر جو غور کیا جائے تو یہ جو قابل ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم مزید فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ غریبوں کا علاج جو ہے نا پاسبل ہو سکے۔ اسد اقبال پاشا کا یہ کہنا تھا کہ مریض کا آپریشن کیا گیا ہے، جو آدی والے کا رہائشی ہے، وہ درخت سے گرنے سے اس کی ٹانگ اور ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی تھی، جس پہ 5 گھنٹے آپریشن جاری رہنے سے کامیاب آپریشن کیا گیا ہے۔ ہم بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں ڈاکٹر اسد اقبال پاشا کو۔ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ مسئلے مسائل خانیوال ڈی ایچ کیو میں ہیں، وہ ضلع انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ پیش کیے جائیں تاکہ کسی کو بھی ملتان یا لاہور جانے کی بالکل ضرورت نہ پڑے۔ ہم ڈی سی صاحب کے مشکور ہیں اور جو ہے ایم ایس کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ جی سرگودا میں مسلح افراد کی ضلع کچہری میں تاریخ پیشی پر مخالفین نے فائرنگ کر دی، ایک شخص جاں بحق 4 زخمی ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلنے کے احاطہ عدالت میں داخل ہوتے ہوئے مسلح افراد نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے محمد اعجاز موقع پر جاں بحق جبکہ 4 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لالیہ سے آئے ملزمان کا 73 جنوبی کے رہائشیوں سے مقدمہ بازی کا تنازع چل رہا تھا۔ شکر گڑھ کرتارپور میں بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی تقریبات جاری ہیں۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے یاتری عبادات اور رسومات ادا کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کرتارپور سے ہمارے نمائندے۔ جی بالکل، آج بابا گرو نانک سکھ مذہب کے بانی کرتارپور میں اس وقت میں بابا گرو نانک کے دربار پر موجود ہوں۔ یہاں پر آج بہت بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے، کبڈی کا میچ۔ کرتارپور میں انڈیا سے آئے سکھ یاتری موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ چھڑ دیو۔ بہت ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਮੈਚ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੁਤਫ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ
ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी बिल्कुल, आपने सुखदीप साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मुल्क की हुकूमत का जिन्होंने हमें बहुत सारा प्यार दिया और मोहब्बत दी, और यहाँ के जो इंतज़ाम है सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतज़ाम किए गए हैं, और लंगर का जो इंतज़ाम है इन लंगर का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। जी खानेवाल के मौसम में खुनकी आई तो शहरियों ने खुश्क मेवाजात की दुकान का रुख कर लिया है, जहां पर शहरी मौसम की मुनासबत से अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू, चिलगोज़ा और खुश्क खुबानी खरीद रहे हैं। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की ये रिपोर्ट। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है तो शहरी अपने आप को सर्दी से महफूज रखने के लिए खुश्क मेवाजात की खरीदारी के लिए ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर पहुंच गए हैं। शहरी मौसम की मुनासबत से अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू, चिलगोज़ा और खुश्क खुबानी की खरीदारी कर रहे हैं। खुश्क मेवाजात की दुकान पर खरीदारों का खासा रश दिखाई दे रहा है। हम पहुंचे हैं यहाँ पर जी खानेवाल, बच्चों की फरमाइश के लिए कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लेने। इनके पास हैं अपना खजूरें, बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह और ये काजू, पिस्ता वगैरह। कुछ खजूरें, ये जो मकसद है बच्चों के लिए फरमाइश है, मौसम के साथ साथ तब्दीलियाँ हैं तो बच्चों के लिए हमने ये लिए हैं जी। अखरोट लिए हैं, खजूरें लिए हैं, खुबानी ली है और बादाम वगैरह, काजू, पिस्ता वगैरह लिया है बच्चों के लिए। बच्चों की फरमाइश, मौसम वगैरह भी इंजॉय करें बच्चे और बच्चों के लिए सामान। शहरियों का कहना है कि बच्चों की फरमाइश पर खुश्क मेवाजात की खरीदारी के लिए आए हैं। हमने यहाँ पर बच्चों की फरमाइश पर अखरोट, पिस्ता, बादाम और काजू खरीदे हैं। सर्दी के मौसम में खुश्क मेवाजात इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत में भी इजाफा पैदा करता है। शहरी का कहना था कि मौसम की शिद्दत से बचाव के लिए खुश्क मेवाजात इंसानी सेहत को फ़ायदा देते हैं, और दुकानदार का भी कहना था कि इस साल की निस्बत ड्राई फ्रूट की कीमतों में कमी हुई है और सिर्फ चिलगोज़े की कीमतों में इजाफा हुआ है। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही खुश्क मेवाजात की मांग भी बढ़ गई है, लेकिन शहरी चिलगोज़ा, अखरोट समेत दीगर अशिया की होशरुबा कीमतें देखकर खाली हाथ लौटने लगे। मज़ीद जानते हैं पसरूर से अपने नुमाइंदे एजाज अहमद खोकर से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, तो यहाँ पे खुश्क मेवाजात के शहर में जगह जगह स्टॉल सज गए हैं। तो चूँकि महंगाई ज़्यादा होने की वजह से खुश्क मेवाजात बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से ख़रीदारों का रश ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उससे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी हम ना इधर खुश्क मेवाजात ख़रीदने आए थे। रेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हमारी पहुंच से दूर हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इन चीज़ों, इनके जो प्राइस है उसको कंट्रोल करे ताकि हम भी ये चीज़ें ख़रीद सकें और खा सकें। जी जैसा कि शहरी का कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसकी प्राइस जो है खुश्क मेवाजात की, इसमें जो कमी करे ताकि गरीब आदमी जो है वो भी इसका जायका चख सके। जी मुस्तफाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया, लेकिन ड्राई फ्रूट की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी को ड्राई फ्रूट की सौगात से महरूम कर दिया। मजीद देखते हैं साजिद महमूद खान की ये रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। शहरी मूंगफली, अखरोट, पिस्ता, चिलगोज़ा वगैरह ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ स्टॉलों और दुकानों का रुख करते हैं। सर्दी में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है, मगर गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल महंगाई की वजह से खुश्क मेवाजात के रेटों में भी दुगना इजाफा हो गया है, जिससे शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। जो महंगाई की लहर है, क्या उसने ये ड्राई फ्रूट आप खरीदने आए हैं तो इसकी कीमतों पर भी असर डाला है कि आपको पुराने रेट्स में मिल रही है? भाईजान ये जो महंगाई की हालत है ये हर चीज़ पे असर डाला हुआ है। ये जो मगर के ये बादाम वगैरह, मूंगफली, ये छोड़ो, ये हमारा चाय का काम है। ये लोग चाय का कप तो पूछ रहे यार क्या रेट है, हम कह रहे यार 50 या 60, वो वापस भाग जाते हों, हमारी दुकान की तरफ नहीं आते। ज़रा महंगाई तो दरदार हो रही है, तभी जब पैसे होंगे कस्टमर तो कस्टमर भी हमारे पास आएगा। ये जो चीज़ें ड्राई फ्रूट ये गरीब बंदा तो फोल्ड कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो काम पे असर तो डला हुआ है, ऊपर से ना रेट के मार्जिन्स भी नहीं रहे। शहरियों का कहना है कि खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करना अब ख्वाब बनकर रह गया है। हुकूमत वक्त को चाहिए खुश्क मेवाजात की कीमतों में कमी की जाए ताकि अब आम आदमी भी इस सौगात से महरूम न रह सके।
मज़ीद खबरों को भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि भावल नगर में मौसम सरमा की आमद ने गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। गरीब आदमी अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए लुंडे की चीज़ें भी नहीं खरीद सकते। लुंडा बाजार में पुरानी चीज़ों के रेट भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद विर्क। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। मौसम ने ली अंगड़ाई तो याद लंडे की आई। जी हाँ, बिल्कुल पूरे मुल्क की तरह बहावल नगर में भी जैसे ही मौसम सरमा की आमद शुरू हुई तो शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडा बाज़ारों का रुख किया है। और अगर रेट की बात की जाए तो मैं इस वक्त लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि रेट के बारे में इनका क्या कहना है। जी सर, आप बताइएगा। देखिए जी, मौसम का मिजाज बदलते ही जो है ना जी, लंडे वालों ने भी लूट का बाज़ार गर्म कर दिया है। वो चीज़ जो कल 10-20 रुपए में सेल होते हैं अब 150-200 रुपये में। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? वो बाज़ार के रेडीमेड से निकल कर लंडे की तरफ आता है तो इनके रेट सेम कर दिए गए हैं। अब मौसम के थपेड़ों से बचाने के लिए क्या करें? एकाम बाला से इल्तमास है कि कम अज़ कम ये जो गवर्नमेंट को रिलीफ आता है इसके लिए गरीब आदमी के लिए भी कोई हिस्सा होना चाहिए ताकि गरीब आदमी लंडा तो पहन सके और उसका घर बच सके। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जब हम बाज़ार जाते हैं नए सामान के होते हैं वही लंडा बाज़ारों में जो रेट हैं। हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा ये बढ़ते हुए जो टैक्सेस हैं इन पर कंट्रोल किया जाए ताकि शहरी जो को ये कम से कम सर्दी से अपना तन ढांपने के लिए लंडे के जो कपड़े हैं वो लेकर दे सकें। जी। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी राजनपुर और मेंबर कौमी असम्बली सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान की ज़ेर सदारत ज़िला राजनपुर में जारी तरक्याती स्कीमों और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिकमत अमली के बारे में जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी तफसील जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी राजनपुर व मेंबर कौमी असम्बली सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान दृश्य की ज़ेर सदारत ज़िला राजनपुर में जारी तरक्याती स्कीमों और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव्स बारे जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर सूबाई वज़ीर मादनियात सरदार शेर अली खान गोरचानी, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक, MNA सरदार शमशेर खान मज़ारी, MNA सरदार अम्मार अहमद खान लिगारी, MPA सरदार अब्दुल अजीज़ खान दृशक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद और ज़िले अफसरान ने शिरकत की। दौरान इजलास डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी को जारी मंसूबों और CM इनिशिएटिव्स पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद ने लॉ एंड ऑर्डर बारे ब्रीफिंग दी। पार्लियामेंटेरियन और डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िला राजनपुर की तामीर और तरक्की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नए तरक्याती मंसूबों की रफ्तार और म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम जिले अफसरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव्स पर फोकस करें। राजनपुर के मसाइल के हल के लिए तदारुक और सजेशन के लिए तबादला ख्याल किया गया। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर थईम, मेट्रो 1 न्यूज़ राजनपुर। पाकपतन में फूड सेफ्टी टीम ने 23 EB आरिफवाला में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर कार्रवाई के दौरान 1500 लीटर गैर मयारी दूध तल्फ कर दिया, जबकि 2 मिल्क चिलर्स और मशीनरी जब्त कर ली गई। आपको बताते चलें कि फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कलेक्शन सेंटर की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। DG फूड अथॉरिटी पंजाब का कहना था कि टेस्ट के दौरान दूध में मिलावट और फैट की कमी पाई गई। दूध के मजीद सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। टेस्ट फेल होने पर नाक़िस दूध और तमाम मशीनरी कब्जे में ले ली गई। मिलावटी दूध बेचने पर मिल्क को कलेक्शन सेंटर को सुलह तक बंद कर दिया गया। झंग के शहरी ममनुआ मिलावटी खोया खाने से बच गए। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम ने सरगोदा रोड पर वाक़े खोए यूनिट पर छापा मारकर 125 किलो पाउडर, 1 मिक्सिंग मशीन जब्त कर ली। 1 मन मिलावटी खोया और भारी मिकदार में ममनुआ अज्जा तल्फ कर दिया गया।
बनास्पति घी, सूजी और ममनुआ अशिया की मिलावट से तैयार खोया कब्जे में लेकर तल्फ कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर यासिर का कहना है कि खुराक का कारोबार पंजाब फूड अथॉरिटी लाइसेंस के बगैर किया जा रहा था। तैयार खोए पर कोई लेबल मौजूद न था। मिलावटी खोए को दिलकश पैकिंग लगाकर झंग और गिरदनवा में फरोख्त किया जाना था। ज्यादा मुनाफे की लालच में अवामुल नास की सेहत से खिलवाड़ करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मिलावट माफिया की सरकूबी के लिए टीमें दिन रात कोशा हैं। मनानवाला में सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि ऑपरेशन सबके लिए यकसा होना चाहिए। म्यूनसिपल कमेटी मनानवाला को जब भी पैसे नहीं दिए जाते तो ऑपरेशन के नाम पर सामान उठा लिया जाता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डेरा गाजी खान में सेवरेज मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने जारी मंसूबे का विजिट किया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सेवरेज मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। गदाई, चुंगी ता सर्कट हाउस सेवरेज मंसूबे में क्वालिटी वर्क को यकीनी बनाया जाए, इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने मौका पर काम चेक करने के दौरान किया। उन्होंने मजीद कहा कि नई पाइपलाइन के दौरान अतराफ की सेवरेज को भी लिंक किया जाए। सेवरेज पाइप रोज़ रोज़ नहीं डाले जाते, अफसरान रोज़ाना पाइप डालने के अमल का मुशाहिदा करें। मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। शहरियों को रिलीफ देने के लिए काम में तेज़ी लाई जाए। उन्होंने कहा कि फंड को यकीनी बनाया जाएगा। रिपोर्ट शेख रमज़ान नदीम, डेरा गाजी खान। हैदराबाद की शाहराहों और चौराहों पर खूबसूरती के लिए लगाए गए करोड़ों रुपए मालियत के मोनूमेंट्स अपनी इंफरादियत खोते जा रहे हैं। मोनूमेंट्स की ना देखभाल है, ना ही टूट फूट के बाद उनकी कोई मरम्मत कराई जाती है। हैदराबाद से देखते हैं अरशद अंसारी की रिपोर्ट। साबका जिला हुकूमत के दौर में शहर को खूबसूरत बनाने के लिए 20 से जायद मकामात पर जानवरों और अहम शख्सियात के मुजस्समे लगाकर नस्ब किए गए, जो आज हुकूमती अदम तवज्जुही के बाइस तबाही की तस्वीर बने हुए हैं। शहर के जो मोनूमेंट्स होते हैं ना, उसकी पहचान होते हैं। और हैदराबाद शहर में जितने भी मोनूमेंट्स हैं वो गुज़िश्ता कई अरसे से खराब नजर आ रहे हैं, टूट फूट का शिकार है, या फिर उधर सियासी बैनर्स लगे हुए हैं, या फिर जानवर बंधे हुए हैं। तो ये शहर की पहचान जो है उसको मसख किया जा रहा है। मोनूमेंट्स बेहतर हों, शहर की तमाम सूरत हाल भी बेहतर होनी चाहिए। इसके साथ साथ हैदराबाद में जो मोनूमेंट बने हुए हैं, हम बना तो लेते हैं उसको और वो हमारे शहर को रिकॉग्नाइज करती हैं चीजें, मगर क्या है कि उसको एक दफा बनाने के बाद रिहेबिलिटेशन नहीं होती है उसकी। कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है हमारे पास कि किसी तरह हम उसको पुरानी हालत में ले आएं। शहर भर में बनाए गए मोनूमेंट्स कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, तो कहीं पुरानी आयत पर मबनी मॉडल्स को नुकसान पहुंचने से इनकी बेहुरमती भी हो रही है। जमीन टूटी पड़ी है, टाइल उखड़े पड़े हैं, अल्लाह के नाम है वहाँ जो है कोई गंदगी है, बिल्कुल है ना, ये खड़े घोड़े बन रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है। इसकी कम से कम देखभाल की जाए ताकि है ना इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगे। हैदराबाद में मोनूमेंट बनाए गए, ये बना तो दिए जाते हैं लेकिन बल्दिया की तरफ से इसकी केयर नहीं की जाती। तो हमारी मेयर हैदराबाद से भी दरखास्त हो कि गवर्नमेंट फंड दे रही है हैदराबाद को अच्छा बनाने के लिए, तो उसको यूटिलाइज किया जाए। हैदराबाद के शहरी मेयर हैदराबाद और जिला इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मोनूमेंट्स की मरम्मत और सफाई का काम फौरी शुरू कराया जाए। कैमरा टीम के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में सिराई की अदबी मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर शौरा के साथ साथ मकामी शौरा ने भी शिरकत की। आपको बताते चलें कि मुशायरे अदबी सकाफती शऊर देने और माशरती घुटन को कम करने के लिए बेहतरीन और आजमूदा तरीक़े हैं। ऐसी मुस्बत सरगर्मियों से माशरती तब्दीली के लिए मुतादिद नई जहतें जन्म लेती हैं, जिससे न सिर्फ मुस्बत सोच फिक्र पैदा होती है। ऐसे ही जतोई जैसे इलाके में जहां सिराई की अदबी सरगर्मियां अरसे दराज से जमूद का शिकार थीं, आज एक बार फिर इस खड़े पानी में पहला कंकर फेंकने वाली शख्सियत डॉक्टर खालिद परवेज़ और तालीमी और अदबी शख्सियत मलिक मुश्ताक अहमद ने पहली बार शानदार सिराई की मुशाहरे का इनेकाद किया, जिसमें सिराई की सेब के नाम पर सिराई की शायर, फनकार और गुलकार अपनी आवाज़ का जादू जगाया।
फरमाया और शोरा कराम सामीन के ज़ौक़ की नज़र अपना खूबसूरत कलाम पेश किया। शोरा कराम अपनी अपनी कलम और खुदादार सलाहियतों की बदौलत हमेशा की तरह खूबसूरत और असरअंगेज़ पैगाम अपनी शायरी के ज़रिए पेश किया। मुशायरे में शहरियों के साथ साथ जतोई के सहाफ़ी बरादरी ने भी शिरकत की। फैसलाबाद थाना सरगोदा के इलाके में चोर दौरान वारदात दरवाजे तोड़कर नकदी और घर का सामान ले गए। मुतासरा खातून ने मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए आला हुक्काम से इंसाफ की अपील की है। जी मैं इधर मलंग चौक ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ। ਮਿਲਤ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਫਤਖਾਰ ਬਾਜਵਾ, ਕਿਰਨ ਉਰਫ ਜ਼ੁਨੈਰਾ, ਰਾਜਾ ਸਰਫਰਾਜ਼, ਜ਼ੋਰਾ ਬੀਬੀ, ਸਨਮ ਉਰਫ ਬਿੱਲੋ, ਅਨਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ। ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ, ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ, LCDਆਂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਿਲੰਡਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਨਾਬ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਾਰਾ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। अंजुमन ताजरान के इलेक्शन में फूल ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बाबर नवाज बिला मुकाबला सदर और हाजी मोहम्मद दिलशाद को बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी गरबी बाजार मुंतखब कर दिया गया। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड भक्कर ने ऐलान कर दिया। मजीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। अंजुमन ताजरान गरबी बाजार फूल ग्रुप के शेख बाबर नवाज बिला मुकाबला सदर जबकि हाजी मोहम्मद दिलशाद बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इलेक्शन बोर्ड की तरफ से सदर और जनरल सेक्रेटरी के जीत का ऐलान कर दिया गया। नौ मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी के हामियों की तरफ से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। तमाम ताजर बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मुंतखब किया, बिला मुकाबला मुंतखब किया। और मैं अपने शहर पसंद नासिर जो कुछ लोग ये मुहाजिर लोकल का एतराफ़ कर रहे हैं और उन्होंने जगह जगह ये इंतशार फैलाया हुआ है, मैं उनके लिए ये पैगाम दूंगा कि मेरा बाज़ार तकरीबन मुहाजिर बिरादरी का बाज़ार है। और इस चीज़ का ये सबूत है, ये हमारे बुजुर्ग हैं बाज़ार के, ये राणा बिरादरी से हैं, वो राणा अरशद साहब, ये राणा इजाज़ साहब, ये राणा अख्तर साहब, ये हाफिज़ मुग़ल बिरादरी से हैं। ये सब मेरे सपोर्टर हैं, मेरे वोटर हैं। और मैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि खुदारा ये शहर पसंदे वाली बातें ना करें और हमें ताज़र रहने दें। हमारे आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है, हम हमेशा भाई भाई हैं। सबसे पहले मैं ताजर बिरादरी और बाजार वालों को मशकूर हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। नौ मुंतखब सदर शेख बाबर और जनरल सेक्रेटरी हाजी दिलशाद फूल ग्रुप के सरबराह हाजी शेख मोहम्मद अयूब के पास पहुंचे तो उन्होंने फूल की पत्तियों से इस्तकबाल किया। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो वन न्यूज़ भक्कर। डीसी ऑफिस सियालकोट में सुथरा पंजाब प्रोग्राम का जायजा लेने के इजलास का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पंजाब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड अथॉरिटी चौधरी तारिक सुबहानी का कहना है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सियालकोट और नारवाल की 7 तहसीलों के अर्बन इलाकों में सियालकोट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी ने सफाई का आगाज़ कर दिया है और बतदरीज दही यूनियन काउंसिल में सफाई के ऑपरेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज और मशीनरी हायर करने के लिए कंटेनर को मोबिलाइज कर दिया गया है। चौधरी तारिक सुबहानी का मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने दही इलाकों में सफाई की सहूलियात की फराहमी के लिए तारीख में पहली मरतबा एक जामे प्रोग्राम तरतीब दिया है और इसके लिए ग्रैंड इन्वेस्टमेंट की है। इस प्रोग्राम की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाएगा और माहाना रेवेन्यू के अलावा हफ्तावार फील्ड विजिट करके इंस्पेक्शन की जाएगी। पीर महल के नवाही गांव की वाटर सप्लाई हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस खस्ता हाली का शिकार है। आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंतजामिया की इंतकामी कार्रवाई करते हुए वाटर सप्लाई की मेन पाइपलाइन के साथ साथ गैस की लाइन भी काट दी गई। पीरमहल के नवाही गांव 333 गाबे में वाटर सप्लाई का मंसूबा इंतजामिया की इंतकामी कार्रवाइयों की भीड़ चढ़ गया। अहले दया की आवाज़ बुलंद करने पर इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हुए मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए। शोहर रोजगार करते डेसी मिल्लां दे मालक नहीं है,
ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੈਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ? ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਫਿਲਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਗੈਸ ਦੇ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਟ ਧਰਮੀ ਆ, 16000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਪੈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ चले गए ने। आज नवाही गांव में इंतजामिया ने मखसूस खानदान को इबरत का निशाना बनाने के लिए इंतकामी कार्रवाई के दौरान हैवी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए वाटर सप्लाई का कनेक्शन काटने के साथ साथ गैस लाइन की तरसील भी मुअत्तल कर दी। अहले दे ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि अफसरशाही के खिलाफ फिलफौर मुकदमा दर्ज करके पानी और गैस की बहाली को यकीनी बनाया जाए। मज़ीद खबरों को भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीनियर मैनेजमेंट लाहौर कोर्स के शुरा ने भावलपुर का मुतालाती दौरा किया। आपको बताते चलें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर के 36वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के 18 रुकनी वफ़द ने कोऑर्डिनेटर्स करीम बख्श और नौशीन मलिक के हमरा भावलपुर के मुतालाती दौरे के मौके पर कमिश्नर भावलपुर नादर चड्ढा से उनकी दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक भी मौजूद थे। कमिश्नर भावलपुर ने ज़ेरे तरबियत अफसरान को भावलपुर की तारीख़ी और जोग्राफियाई अहमियत और सकाफती पहलुओं समेत नवाब ऑफ भावलपुर की तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में गिरा कदर खदमात के बारे में तफसील तौर पर आगाह किया। हुकूमत पंजाब की जानिब से फराहम करदा सेहत और तालीम की सहूलियात, क्लिनिक ऑन व्हील्स पर प्रोग्राम, इंसदाद जंगी पोलियो मुहिम और दीगर हेल्थ रिफॉर्म्स की तफसीलात के बारे में भी बताया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने गवर्नमेंट इस्लामिया हायर स्कूल गुजरात का दौरा किया। DC गुजरात ने स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों, क्लास रूम्स, दफातर, लाइन्स और लेबॉर्ट्रीज़ का भी मुआयना किया। आपको बताते चलें कि उन्होंने सफाई की सूरत हाल और तदरीसी अमले की हाजिरी को भी चेक किया और तलबात से फराहम करदा तदरीसी सहूलियात के बारे में सवालात किए। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने इस मौके पर कहा कि सरकारी स्कूलों में तदरीसी सहूलियात को बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है और अमले की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने स्कूल्स में अदम दस्तियाबी सहूलियात की फराहमी के लिए जारी खुसूसी इक़दाम का भी जिक्र किया। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद हिदायत दी कि तलबा और तालिबात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए स्कूल में नर्स सिक्योरिटी कैमरों को फ़ाल रखा जाए। स्कूल के माहौल को साफ़ सुथरा रखने, साजो सामान की देखभाल और तलबा की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरकारी स्कूलों की मुसलसल निगरानी जारी है और असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम इंतज़ामी अफसरान अपनी अपनी तहसीलों में बाकायदगी से स्कूल का दौरा कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद हिदायत दी कि तदरीसी सहूलियात के साथ साथ तलबा के किरदार साजी और इखलाकी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए, जबकि उन्हें गैर निसाबी सरगर्मियों में मशगूल रखकर उनकी तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाए। थाना जहानिया पुलिस ने अहम कामयाबी समेटते हुए डकैती की वारदातों में 2 मुलजिमान जबकि दूसरी कार्रवाई में मवेशी चोरी की वारदातों में मुलविस 2 सरगर्म मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। आपको बताते चलें कि जहानिया और गिरदनवाब में डकैती और मवेशी चोरी की वारदातों का DPO खानेवाल ने सख्त नोटिस लेते हुए SDPO और SHO को अहकामात जारी किए कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए और जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारियों के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। पुलिस ने सुहेल गैंग में मुलविस मुलजिमान मोहम्मद सुहेल को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी कार्रवाई में मवेशी चोरी में मुलविस मुलजिमान रमज़ान और रियाज को भी कानूनी शिकंजे में जकड़ा। कसूर में मतलूब खतरनाक डाकू साथियों की गिरफ्तारी से हलाक हो गया। आपको बताएं कि पुलिस ने दोलेवाला के करीब डाकुओं का ताक़ुब किया। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजिमान ने पुलिस को देखकर मुख्तलिफ अतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें इंतहाई मतलूब डकैत अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि डाकू फरार होने में कामयाब हो गए।
पुलिस ने मौके से छीनी गई 2 अदद मोटरसाइकिलें, नकदी और पिस्टल बरामद कर ली। बरामद होने वाली एक मोटरसाइकिल इसी वारदात के दौरान छीनी गई। फरार होने वाले डाकुओं की शनाख्त भी कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है। कैरोड़ पक्का में टब्बी वरना के जालिम दरिंदे ने भैंस की टांग काट डाली, जबकि दूसरी टांग को डंडे मारकर तोड़ दिया। बेज़बान जानवर की आंखों से आंसू छलक पड़े। जहां इंसानियत सोज वाक़यात आम थे, अब जानवरों पर भी जुल्म किया जा रहा है। इस पर मज़ीद देखते हैं हसनैन खान रिन की रिपोर्ट। कैरोड़ पका टिब्बी वड्डा में जुल्म की इंतहा। बेजुबान भैंस ने घास क्यों खाया? जालिम दरिंदा सिफ्त इंसान ने भैंस की टांगें तोड़ डाली। टिब्बी वड्डा के रिहायशी हसन वाड नामी शख्स की कीमती भैंस रात के अंधेरे में रस्सी तुड़वा कर खेतों में भाग गई। खेतों में चारा खाने पर जालिम शख्स ने बेजुबान जानवर पर जुल्म और बेरहमी की इंतहा करते हुए एक टांग को काट दिया और दूसरी टांग को डंडे मार मार कर तोड़ दिया। हसन वाड का कहना है कि सुबह सवेरे भैंस तलाश करते हुए करीबी खेतों में जानवर की दर्दनाक आवाज़ें सुनाई दी। जब जाकर देखा तो दर्द से बेजुबान जानवर की आंखों से आंसू छलक रहे थे। शहरियों का कहना है कि यहाँ इंसानियत सोज वाक़यात तो आम थे ही, मगर अब जानवरों पर भी जुल्म किया जा रहा है। मुआशरे की बेहिसी का अंदाज़ा इस वीडियो से लगाया जा सकता है कि एक बेजुबान जिंदा जानवर की टांग एक इंसान नुमा जिंदा जानवर ने काट दी। शहरियों का कहना है कि बेजुबान जानवर पर जुल्म ढाने वाले मुलजमान किसी माफ़ी के मुस्तहक नहीं। पुलिस थाना सदर ने मौका पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। हसन वाड और उसके अहल खाना का कहना है कि DPO लोधरा फौरी तौर पर नोटिस लेकर मुलजमान ट्रेस करके कैफे किरदार तक पहुँचाएँ। कैमरा टीम इमरान PK के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड़ पका। मीरपुर खास में महकमा तालीम की जानिब से सरकारी स्कूलों के तलबा तालिबात में छुपी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक रोज़ा साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। मीरपुर खास महकमा तालीम अफसरान की जानिब से पहली बार गुलिस्तान बल्दिया पार्क में मीरपुर खास के तमाम स्कूलों के बच्चों में छुपी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए लगाई जाने वाली एक रोज़ा साइंसी नुमाइश में स्कूल के तलबा तालिबात ने माहौलियाती आलूदगी, ज़राअती मशीनरी, सेहत और रोज़मर्रा घरेलू अशिया को इस्तेमाल करके बेहतरीन मॉडल तैयार किए गए हैं। स्कूल के तलबा तालिबात के साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने नुमाइश को देखा और बच्चों के टैलेंट और मॉडल्स को सराहा। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि साइंसी नुमाइश में बच्चों में छुपा टैलेंट उजागर कर दिया गया। एक बार फिर कोशिश की गई और महकमे तालीम अफसरान को चाहिए कि ऐसी नुमाइश का हर साल एहतमाम किया जाए ताकि अपने बच्चों में छुपा टैलेंट उजागर किया जाए। कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश जारी है। नुमाइश में क्या कुछ दिफाई सामान रखा गया है, जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची शुजात कुरैशी से। आज बिल्कुल आइडियाज़ 2024 में वैसे तो दिफाई साजो सामान दुनिया भर से आया है, दीगर ममालिक यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन हैवी इंडस्ट्री टेक्सटिला ने एक शाहकार तैयार किया है। उसका नाम है हैदर टैंक। और आपको बताऊँ कि ये इसकी क्वालिटी ये है कि दिन के साथ साथ ये रात में भी वार कर सकता है, मार कर सकता है। तो इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें इसकी क्या मज़ीद खासियत हैं, ये जानेंगे हम एक्सपर्ट से। अंजा कील जनाब भी बताइएगा कि हैदर पहली दफ़ा लॉन्च किया गया है तो तवज्जो का मरकज़ तो बना हुआ है, लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला 1971 से डिफेंस प्रोडक्शन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है और जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें दिस इज़ आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट टैंक हैदर जो है वो 3rd जनरेशन प्लस टैंक है। और जैसे कि आपने बताया कि बिल्कुल इसमें दिन में और रात में दोनों में फायर करने की सलाहियत है। अच्छा, इसके साथ साथ कितनी दूर तक इसकी रेंज है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है मज़ीद इसमें?
जी बिल्कुल, इसकी जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न बैटल टैंक्स हैं बिल्कुल उतनी ही है और उनसे बहुत बेहतर है। और सेकेंडली मैं आपको बताता चलूँ कि दिस मशीन कैन फायर अप टू 6 to 8 राउंड्स पर मिनट बिकॉज इसमें ऑटो लोडिंग की फैसिलिटी मौजूद है। अच्छा, ये खालिद टैंक है, फारिस है और दीगर टैंक्स भी यहाँ पे खड़े हैं, तो ये हैदर टैंक इन दूसरों से मुनफरिद किस बुनियाद पे बनता है? जी बिल्कुल, इसमें एक ख़ास सलाहियत मौजूद है कि इसमें जो हमारा गनर है और जो कमांडर है वो दोनों नाइट फायर कर सकते हैं और साथ साथ इसमें एक रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम भी लगा हुआ है जो अंदर बैठ के क्रू ऑपरेट कर सकता है। बहुत शुक्रिया। ये थे हंजा अकील जो कि एक्सपर्ट हैं हैदर टैंक के। इन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या खासियत हैं और ख़ास तौर पे ये दिन के साथ साथ जो है रात में भी मार कर सकता है, फायर कर सकता है। तो यकीनी तौर पर हैवी इंडस्ट्री टैक्सला की ये एक शाहकार है, एक बड़ा ज़बरदस्त मुँह बोलता सबूत है। जी शुक्रिया शुजात कुरैशी तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।